Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, students. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to everyone. Okay. Good evening, sir. Yes, I was asking who else have taken the class today? Good evening, sir. Good evening, Priyanshi. Who else have taken the class today? Sir Shazib sir and Tejaswita ma'am. Jasmita ma'am. Rajiv sir or Tejaswita ma'am. Okay. What was the total strength there? Sir, Sir, 2021. Sir, in Shajib sir lecture it was 21 and in Tejaswita's ma'am lecture 24. 24. Okay. All right. So 13 students I can see right now. Let other students also join and then we'll start the class. Who is president here? Who is the student president? sir एकम है. Sir, Kirpa. Kirpa. Okay. Wait, huh? It's okay like that. Okay, 13 students yet. Should I expect some more to come or I should start? Sir, maybe they will come. Should I start the discussion? Yes, sir. Yes, sir. Because I don't think so that the students are going to join more. हो सकता है नो टीचर टू टीचर वाइज पक्षपात चल रहा हो है ना शाजिब सर के में 21 तेजस्विता मैम के में 24 फिर मुकुल सर को ओनली 14 मतलब 14 में भी वो खुद ही इंक्लूडेड है मतलब 13 ओनली वेरी बैड सर मैं ही 10 जैसा हूँ. हाँ सब ऐसा तो नहीं है शाम की चाय पीने चले गए एंड आई एम सिटिंग टू टीच यू पीपल हियर Maybe. मे बी ओके लो एक और कम हो गया 12 ओनली स्टूडेंट्स आर हियर चलो फाइन लेट मी स्टार्ट आई थिंक ओके so we got 2 days of gap between the lectures right I got really busy with some other task and I could not continue to take lecture no problem so last we had a discussion about the nature of marketing management remember Yes, sir. okay right Yes, the sir. nature of marketing management what we had a discussion about like I told you few characteristics of the features on the basis of we could figure out that what marketing management is all about am I clear Yes, sir. I'll take the slides back so that you people can recall something let me know if you people can see the slides yes are the slides visible Yes, sir. Sir. Yes, sir. okay on the slides I told you last time about nature of marketing right which was the slide we had a discussion about in the last class सर yes Kripa सर इतने दिन बाद तो क्लास लगा रहा हूँ वो भी आप इंग्लिश बोले पड़े हो दबा के.
मतलब I couldn't get you. क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ सर इतने दिन बाद तो क्लास लगा रहा हूँ, वो भी आप इंग्लिश बोले पड़े हो, सब शौक मार देते हो पढ़ाई का। No, there's nothing like that. You are attending my classes for the first time, but yes, earlier the students have already attended. So they must be back to addiction, isn't? सर भारतीय हैं, ये सब भारतीय हैं, भारतीय नारी हैं। क्या कह रहे हो आप? मैं ये कहता हूँ सब भारतीय नारी हैं, ये सबको आती है नहीं। Achha, okay. That's good. Okay, no problem. Fine. After nature of discussion on nature of marketing, we'll be discussing about scope of marketing today. Okay? Right. Yes, But sir. before we start our discussion about scope of marketing, let me remind you, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि nature की जब आप बात करते हो तो you talk about characteristics and features of a particular concept. But on the second side, when you talk about scope, scope means the entire area or the regime or every particular field that a particular concept covers or maybe the subject covers. Am I clear? जब भी आप स्कोप की Yes. बात करते हो तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट की उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हो कि कौन कौन से फील्ड, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने स्कोप के बारे में डिफाइन करते हुए लास्ट क्लास में आपको बोला था कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के स्कोप की बात करते हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हो कि ये सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका यूज कहाँ है, राइट? मैंने आपको बताया था कि मैं Yes. तो मेरे लिए सब्जेक्ट मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स ये सबसे ज्यादा ऐसे ही सब्जेक्ट रहते थे जिसमें सबसे पहले मुझे यही पूछना होता था। मैं कोई भी सब्जेक्ट तब पढ़ूंगा, कोई भी इसका पर्टिकुलर लेसन तब पढ़ूंगा जब आप मुझे बता दो कि ये न्यूमेरिकल कहाँ यूज होगा, इंटीग्रेशन कहाँ यूज होगा, कैलकुलस कहाँ यूज होगा, डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होगा। जिस समय बता दो उस समय पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बोरिंग टॉपिक लगते थे मेरे को और न्यूमेरिकल तो आई ऑलवेज फार अवे, नो, उनसे हमेशा दूर भागता हूँ। ठीक है, ओके। सो अल्टीमेटली इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें, स्कोप की बात करें, ऐसे एरियाज की बात करें तो जहां जहां मार्केटिंग मैनेजमेंट अप्लाई होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पूरे सिलेबस को रिव्यू करोगे, राइट, उस पूरे सिलेबस में जितने पॉइंट्स कवर किए गए हैं, मतलब मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था और हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट एक फैकल्टी ने पढ़ाया था, तो उस फैकल्टी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्कोप क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो कुछ मत करना जो पूरे सब्जेक्ट में पढ़ा हो कि यूनिट 2 में क्या था, यूनिट 3 में क्या था, 4 में 5 में क्या था, वही लिखाना थोड़ा थोड़ा हर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वही मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्कोप है, तभी तो सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स वही हैं, राइट? ओके। So starting from scope of marketing management, the very first thing comes study about consumer wants and needs. हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था नीड, वांट्स एंड डिमांड के बारे में। अच्छा, हल्का सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल देकर के आपको बताया था कि नीड, वांट्स एंड डिमांड में डिफरेंस क्या होता है। एक पर्टिकुलर कॉमन एग्जांपल को लेकर के अगर आप नीड, वांट्स एंड डिमांड को अगर स्टडी करते हो तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे किसी चीज को? आई थिंक हम लोगों ने मास्क का एग्जांपल लेकर के इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था, राइट? तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं नीड, वांट्स एंड डिमांड के बीच में? Sir, Yes. sir, need is something which is a common product which can fulfill a requirement. Okay. And sir, want we can say available options that a product has. Very good. Sir, Right. then demand is sir our buying capacity. Very good. Right. तो हम लोगों का जो लास्ट मास्क का एग्जांपल दिया था उसी बेसिस पे अगर हम लोग एक बार दोबारा से रिपीट कर लें तो हमें अपने आप को वायरस से प्रोटेक्टेड रखना है। मास्क का रिक्वायरमेंट है तो मास्क एक नीड है। अलग अलग तरीके के मास्क जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो हमारी वांट्स हैं, यानी कि अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, बात है डिमांड तभी क्रिएट होगी जब हमारी बाइंग कैपेसिटी भी हो उस तरीके के मास्क को परचेज करने की। Am I clear? Okay. तो नीड, वांट्स एंड डिमांड में बिल्कुल एक डिफरेंस क्लियर है यहाँ पे बेसिक सा। तो यही सबसे पहला स्कोप है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये स्टडी करना कि हमारे इंडिविजुअल कस्टमर की नीड, वांट्स एंड डिमांड क्या है उसके बारे में जानना, राइट? मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये सब्जेक्ट फिनिश करोगे, जो इसका लास्ट टॉपिक है वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, राइट? मार्केटिंग मैनेजमेंट के 5th यूनिट में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपके 4th सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होगा, ठीक? तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी, जब सबसे पहले टॉपिक में लिखा हुआ है कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स की स्टडी करना, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूज होता है वो यही है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें बताता है कि अगर हमें जानना है इंडिविजुअल की नीड, वांट्स एंड डिमांड के बारे में तो उसका तरीका क्या है, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि काफी जगह आप रिटेल आउटलेट्स पर या मॉल वगैरह में सब जगह जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ होता है, आजकल एक दूसरा तरीका हो गया उस चीज को लिखने का, और लिखा होता है मुस्कुराइए आप कैमरे की नजर में हैं। Yes sir. Yes, जबकि sir. सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है?
सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है? सिक्योरिटी पर्पसेस से, Yes, sir. सेफ्टी पर्पज से, राइट। इतने बड़े रिटेल आउटलेट में से कोई भी इंसान पर्टिकुलरली अगर एक जीबी चीज कम कर देगा तो कैसे पता लगेगा? ऑल्दो आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्योरिटी मशीन्स होती हैं, बारकोड्स जैसे आप निकलते हो वो अपने आप ही उसमें जो सायरन लगा होता है वो प्ले हो जाता है और पता लग जाता है कि किसी कस्टमर ने कोई ऐसी चीज है जो परचेज नहीं करी और वो लेके बाहर जा रहा है। यानी कि ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पास ऑन हो रहा है उस मशीनरी से जो कि इन्वेंट्री में अभी भी मौजूद है, और वहां पे वो मशीनरी तुरंत रोक देती है उस प्रोडक्ट को। यही होता है, राइट। लेकिन समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा का मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिया? मैंने आपको ये तो बताया कि स्टडी कस्टमर की नीड्स वांट्स का करना है आपको, लेकिन आप कैसे करोगे? जो कस्टमर अपने घर पे बैठा है उसके लिए तरीका अलग है, जो मेरी शॉप पे खड़ा है उसके लिए तरीका अलग है। यहाँ पे दो चीजों के बारे में पहले बताऊंगा आपको, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। पहला चीज, सीसीटीवी कैमरा जो लगाया गया है, मानता हूं मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज से लगाया गया है, लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, कंपनी के मार्केटिंग पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, तो सीसीटीवी कैमरा का यूज इसलिए भी है कि मैं ये नोटिस कर पाऊं कि मेरा कस्टमर किन चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है। आप बिग बाजार देखते हो, बिग बाजार में आप जाते हो तो बहुत सारे काउंटर्स हैं, बहुत सारे पर्टिकुलरली उन्होंने शेल्फ लगाए हुए हैं। किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पे आपको बिग बाजार में कपड़े दिखेंगे, तो किसी में फूड आइटम्स दिखेंगे, किसी में आपको मेकअप का सामान मिल जाएगा, किसी में आपको डिजिटल गैजेट्स मिल जाएंगे, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो एक ही पर्टिकुलर जगह पर बिग बाजार के लिए कितने भी वो एम्प्लॉय रख ले, लेकिन हर कस्टमर पे निगाह रखना जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो पाए। तो मानता हूं एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से सीसीटीवी कैमरा लगाया, लेकिन मान लेते हैं कि अगर बिग बाजार के एक अकेले आउटलेट पे एक दिन के अंदर 1000 लोग विजिट कर रहे हैं। कितने लोग विजिट कर रहे हैं? 1000। और मॉल जैसी जगहों पे, मॉल जैसी जगह पे बिग बाजार में 1000 नंबर तो बहुत ही कम है, राइट। हो सकता है इससे ज्यादा लोग ही विजिट करते हो, जो नॉर्मल डेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें 1000 की भीड़ आपको नॉर्मली पूरे बिग बाजार में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर मार्केटिंग मैनेजर है वो बैकएंड से बैठ करके वो सीसीटीवी कैमरा पे क्या नोटिस कर रहा है, उसकी दो तीन चीजें बताता हूँ आपको। पहली चीज, आज मैंने ऑफर्स लगाए थे, उन ऑफर्स के अकॉर्डिंगली क्या फुटफॉल आया? मैंने इस काउंटर पे ऑफर रखा था, दूसरे पे नहीं रखा था, तो जिस पे ऑफर था क्या मेरा कस्टमर आज उन ऑफर्स को लेकर के वहां पे विजिट कर रहा है, उस जगहों पे इंटरेस्ट आ रहा है उसका? यानी कि ये कैसे पता लगेगा? सीसीटीवी कैमरा में से देख के पता लग सकता है उस काउंटर पे भीड़ हो रही है नहीं हो रही है। Am I clear? आपने देखा होगा कि जनरली जो ऐसे कपल, मतलब जो ऐसे लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं या इनिशियली मैरिड हैं, आप देखो जब वो मॉल में जाते होंगे, बिग बाजार में जाते होंगे, तो फूड आइटम ले लिए, घर का सामान ले लिया, बाकी सामान ले लिया, वो किड्स सेक्शन की तरफ अभी नहीं जा रहे होंगे, राइट। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि ऑफर नहीं लगा था, तो हो सकता है लोग वहां पे विजिट नहीं कर रहे थे। आपने दिवाली के डेकोरेशन का सामान अभी से थोड़ा थोड़ा बिग बाजार में रखा हुआ है, लेकिन अभी कोई नहीं जा रहा है उस जगह पर, राइट। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसी दिवाली क्लोज टू होगी, लोग जाने लग जाएंगे, तो वो उसी पे ऑफर लगाने लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे से कस्टमर की जो एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, राइट। इससे कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता लग जाएगा कि किन काउंटर्स पे मेरे पास फुटफॉल बहुत कम रहता है। लाइक अगर आप लगेज सेक्शन की बात करोगे तो आप देखोगे वहां पे आपको जो सूटकेसेस हैं, बैग्स हैं, राइट, उनको खरीदने जल्दी बंदा वहां पे आपको ज्यादा भीड़ नहीं दिखेगी जितना आपको कपड़ों वाले सेक्शन पे मिल जाएगी, होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, कपड़ों की नीड लोगों को ज्यादा है। सर मेरे जैसे लोग तो वहाँ पे सर शीशे में सेल्फी लेने जाते हैं, फोटो। सॉरी, हाँ, शीशे में सेल्फी लेने जाते हैं। उससे ज्यादा बेहतर है वो लोग अपना बड़ा शीशे घर पे लगवा लें, वहां सेल्फी ले लें, isn't? नहीं सर वहाँ चलो फाइन। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के कस्टमर का भी, यस, ओके, चलो इस तरह के कहीं ना कहीं इस तरह के कस्टमर की भी मुझे एक्टिविटीज पता लगती हैं। अच्छा चलो, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे कृपा ने यहाँ पे उठाया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग केवल बिग बाजार में बड़े शीशे के सामने मोबाइल से सेल्फी क्लिक करने जाते हैं, राइट, ओके। लेकिन आजकल आप देखो ये ट्रेंड बन गया है, जब तक आपके पर्टिकुलर आउटलेट पर स्पॉट पे कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे लोगों को सेल्फी क्लिक करने का मौका मिले, तब तक आपके यहाँ जल्दी रश भी नहीं आएगा, राइट। मुझे याद है, मतलब मेरे ही खुद के भैया ने जब रकबदार कैफे ओपन किया था, तो रकबदार कैफे में उन्होंने स्टार्टिंग में एक स्कूटर रख दिया था, लोग जाते थे स्कूटर पे फोटोग्राफ क्लिक कराते थे, राइट। तो स्कूटर क्या था, हमारे मामा जी का ही स्कूटर था, वो पुराना उन्होंने पेंट करा के वहां पे रखवा दिया, एंड पीपल वर सो एडिक्टेड, जब भी रकबदार जाते थे उस स्कूटर पे बैठ के फोटो जरूर क्लिक कराते थे। Am I clear? राइट। तो इसी तरीके से आप देखो, जैसे मैंने देखा है कि जैसे यहाँ पे है एक स्काई गार्डन नाम से एक रेस्टोरेंट है अयूब खान सराय पे, तो स्काई गार्डन में क्या किया उन्होंने, टेरेस लॉन्च जैसा बनाया। जैसे हाँ, बहुत कॉमन एग्जांपल यहाँ पे निकल के आता है, फ्लैशबैक में रखी हुई वो चेयर,
Yes, sir. राइट। तो हर बंदा जो जहाँ जब भी जाएगा फ्लैशबैक पे, वो वहां शेयर पे बैठ के फोटो जरूर क्लिक कराएगा एंड देन डीपी जरूर लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर की एक्टिविटीज है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को भी नोटिस नहीं करता तो शायद मैं इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट अपने आउटलेट्स पे नहीं करता। Am I सर clear? स्काई गार्डन में भी एक चेयर है राइट, वैसी। स्काई गार्डन में दैट उससे यू अलग नो है। ये क्रैडल काइंड ऑफ चेयर है व्हाइट कलर की। हाँ यस। Yes, right. I know that. तो इस टाइप की चीजें कुछ छोटी छोटी कहीं ना कहीं आप देखो कि कस्टमर की एक्टिविटीज को ट्रेस करके ही की जाती हैं। Am I clear? Okay. अब नेक्स्ट बात आती है कि आपने, जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया था कि सीसीटीवी कैमरे से आपने मॉनिटर कर दिया किन किन सेक्शंस पे भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। तो यानी कि मार्केटिंग मैनेजर के लिए अब क्या जरूरी है, उस चीज को मॉनिटर करते हुए ये देखना कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन सेक्शंस पे भीड़ बढ़ जाए। क्लियर, समझ में आती है? अब मान लो अगर आप लोग अभी बीबीए कंप्लीट करके बिग बाजार में इंटरव्यू के लिए जाते हो, right, and there is a profile of marketing manager, so they may ask you this kind of a question also। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम आपको मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल पे हायर कर लें, राइट, और बहुत अच्छी सैलरी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस कॉलोनी में मैंने घर लिया है उसके पास में हमारे यहाँ मोहित गुप्ता जी रहते हैं, राइट, और मोहित गुप्ता जी बेसिकली बिग बाजार में फूड एंड बेवरेज मैनेजर हैं, राइट, 60,000 रुपए सैलरी है। तो हो सकता है मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल पे आप लोगों को भी 70-80 हजार रुपए सैलरी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो अगर आप वहां पे जाते हैं, लेकिन ऐसी सैलरी के लिए पूछा क्या जाएगा आपसे कि बिग बाजार की टोटल सेल कैसे बढ़ेगी। आपको रिसेंटली सुनने में आया होगा बिग बाजार बिक गया, जो बिग बाजार के एक्चुअल ओनर थे वो बिक गए। बेसिकली रिटेल किंग जिनको कहा जाता है उनका बिग बाजार हुआ करता था, उन्होंने सेल आउट करके किसी और को सेल कर दिया, अंबानी ने प्रोबेबली परचेज कर लिया है, राइट। अब मान लो अगर उनको नए मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे ना, जस्ट लाइक जो मैंने कैडबरी के केस में एग्जांपल दिया था आपको कि ऐसा आप क्या करोगे आने के बाद कि बिग बाजार की सेल बढ़ जाए। तो आपको वो पॉइंट भी कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में लाने होंगे। तो ऐसी ही चीजों से पता लगता है कि मान लिया आपने कस्टमर की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया एंड अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड किया ठीक है लगेज सेक्शन पे मैं इतने का ऑफ रखूंगा, मुझे लॉस में नहीं जाना है, तो मेरा मटेरियल अगर बिकना है तो मैं चाहे थोड़ा सा ऑफ दे दूं लेकिन चला जाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग एग्री करते हो कि जब ऑफ लगता है तो वो एक जेन्युइन ऑफ होता है, वो एक प्रिटेंडिव ऑफ नहीं होता? सर वो जेन्युइन ऑफ नहीं होता, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ऑफ। एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड, फाइन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर मुझे 30% का डिस्काउंट देना है तो कॉन्सेप्ट चलता है 30 प्लस एंड 30 माइनस, राइट। ये प्लस माइनस स्ट्रैटेजी कहलाती है। प्लस माइनस स्ट्रैटेजी में मतलब क्या होता है, 30% ऑफ अगर मैं दूंगा आपको, तो जिस जीन्स को मुझे आपको 30% ऑफ पे बेचना है, उस जीन्स पे मैं पहले ही 30% ऐड कर दूंगा उसकी कॉस्ट पे, और उसके बाद उसमें से 30% घटा के आपको दिखा दूंगा कि आपको इतने कम की पड़ रही है और आप परचेज कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये प्लस माइनस स्ट्रैटेजी होती है कस्टमर के माइंडसेट के साथ खेलने की, कि कस्टमर वैसे नहीं आ रहा है लेकिन ऑफ देखकर डिस्काउंट देख के आएगा। यहाँ सर मतलब सीजन चेंज हो रहा हो, जैसे या सीजन चेंज हो रहा है और हमें अपना स्टॉक आउट करना है, तो हम ये तरीका अपना सकते हैं, राइट, कि हमें लॉस में नहीं जाना। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा लेकिन काफी टाइम पहले मैंने सुना था, या सर फूड की जैसे एक्सपायरी डेट पास में आ रही हो तब भी कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे कृपा ने कोट किया कि हो सकता है स्टॉक इसलिए आउट करना है क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है और उनकी एक्सपायरी डेट पास आ रही है, तो बिफोर दे गेट एक्सपायर और हमें बिल्कुल फेंकना ही पड़ जाए उनको, बेटर है हम उसको कम अमाउंट में EOB, लाइक आप ये कह सकते हैं एक जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं हम, मुझे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम याद नहीं आ रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है बेसिकली, राइट। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच देते हैं कि अगर हमें चाहे प्रॉफिट ना भी हो लेकिन हाँ हमें लॉस भी ना हो, इसलिए पहले ही चला जाए ये प्रोडक्ट, राइट। ओके, काफी टाइम पहले एक बार ये हुआ था कि आई वाज इन मॉल एंड ऑल सडन इट वाज अराउंड 7:45, मतलब वो लोग 8:30 पौने 9 बजे के करीब बंद करने वाले थे उस समय पे भी, किसी रीजन की वजह से, शायद उनका कुछ स्टॉक का वैल्यूएशन था। तो ऑल सडन बहुत मॉल में भीड़ हो गई और भीड़ होकर के सबके सब भागते हुए जा रहे थे बिग बाजार की तरफ। एंड आई वाज सरप्राइज कि ऐसा करके होना है कि कोई और ऐसी तो बात नहीं है, इमरजेंसी पता चले हमें भी निकल जाना चाहिए एंड एवरीबॉडी इज मूविंग एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ। सो व्हाट हैपेंड, समबडी टोल्ड मी कि जितने एम्प्लॉइज थे ना मॉल में जो काम कर रहे थे वही भाग क्योंकि उनको किसी ने बता दिया था बिग बाजार के पास जो शू का सेक्शन है उसमें उन्होंने ब्रांडेड शूज को 80 रुपी, मतलब जो 700 के 2000 के 1500 के मिल रहे थे शूज, उनको अनाउंस कर दिया 80 रुपए में आप आइए खरीद के ले जाइए। तो क्योंकि ये बात इंटरनल एम्प्लॉइज के बीच में सर्कुलेट हुई थी, तो जितने एम्प्लॉइज से सब भाग भाग के चले गए और इट टुक हार्डली 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर जितना उनका स्टॉक था सब खाली हो गया।
राइट अब रीजन कुछ भी रहा हो, बिग बाजार की अपनी स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने इंटरनल सर्कुलेशन में मात्र एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी और हर बंदा वहां पे पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको काफी सारी चीजों में कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ेगा, वांट्स को समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली। क्योंकि देखो क्या था, हो सकता है वही शूज कोई 1500 में नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन जब आपने एक ऐसा ही अनाउंसमेंट कर दिया जो सबके बजट में फिट हो जाए, फिर तो कोई वांट नहीं रहेगी ना, वो वांट तो 110% मैक्सिमम केस में डिमांड में कन्वर्ट हो गई, तो लोग खरीदने चले गए। क्लियर है? ओके आप लोगों को मैं बता दूं कि 4th सेमेस्टर में आप लोगों का एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करनी होगी। तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि आपको किसी एक कंपनी के कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की एनालिसिस करनी है। तो उसमें भी आपको यही काम करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि कैसे आप कस्टमर की नीड, वांट्स एंड डिमांड को एनालाइज कर सकते हो। अच्छा मैं भूल कैसे सकता हूँ, आई थिंक हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी उस समय भी मैंने आपको एक टारगेट दिया था 100 लोगों से फॉर्म फिल कराने का, एनालिसिस कराने का, उनके प्रेफरेंसेस जानने का। वो एक इंडिविजुअल स्टडी के बारे में था, किसी की पर्सनालिटी के एनालिसिस करने के बारे में था, उसी तरीके से कंपनी के कस्टमर्स के एनालिसिस। ठीक ओके नेक्स्ट कम्स स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि कैसे आप कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो। राइट इस पे मुझे दोबारा एक एग्जांपल याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि एक लेडी है, मतलब मेरे फ्रेंड की मदर है, वो काफी टाइम से रिटेल में जॉब कर रही है, उनको करीब 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो जिस समय अशोका फोम में ब्रांड्स आए थे, उस समय अशोका फोम पे उनको बुलाया गया था। राइट उनको पता लगा था कि कहीं से उनका रिज्यूमे रिसीव हुआ था, तो उनको कॉल करके बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो मेरे फ्रेंड की मदर वहां पे पहुंची इंटरव्यू देने के लिए। जब वहां पहुंची, क्योंकि उस बंदी को 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, उस लेडी को, राइट मेरे फ्रेंड की मदर को, तो उनसे क्वेश्चन एक पूछा गया कि आप कुछ मत बताइए, बस ये बता दीजिए कि जब कस्टमर आपके काउंटर पे आएगा तो आप कैसे पता लगाओगे कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और किस पे आपको पैसे बिल्कुल कम नहीं करके बेच देना है। दोबारा रिपीट करूंगा क्वेश्चन, कैसे आप ये पता लगाओगे कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, प्लस कौन से प्रोडक्ट में बिल्कुल पैसे बिना कम करे आप उसे बेच दोगे वो प्रोडक्ट। तो जो मेरे फ्रेंड की मदर, उन्होंने बहुत अच्छा सा आंसर दिया, मैं केवल ये नोटिस करूंगी कि मेरे कस्टमर के हाथ और उसकी आंखें कहाँ चल रहे हैं, मेरे कस्टमर के हाथ और उसकी आंखें कहाँ चल रही हैं। वो काउंटर पे 10 जगह देखेगा, लेकिन उसकी आंख एक जगह जरूर रुकेगी, और वो जगह होगी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो उसको पसंद आ रहा होगा। Am I clear? सिमिलरली जिस प्रोडक्ट पे वो खुश हो जाएगा, मतलब उसको देख के एक्सप्रेशन चेंज होंगे उसके, उसी तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना, 10 प्रोडक्ट आप देख रहे हो, एक पे आप हाथ बार बार लगा के देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ये शायद खरीदना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे जो आंसर था दूसरे क्वेश्चन का कि किस प्रोडक्ट पे पैसे बिल्कुल कम नहीं करने, तो वहां पे मेरे फ्रेंड की मदर ने जवाब दिया कि उस प्रोडक्ट पे पैसे बिल्कुल कम नहीं करने हैं जिसको देख करके कस्टमर खुश हो जाए और उसे लगे कि हाँ उसे यही प्रोडक्ट परचेज करना है, उस पे बिल्कुल पैसे कम नहीं करने हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि उसका मन बन चुका है, वही खरीदना है उसे। और अगर मैं पैसे बिल्कुल कम नहीं करूंगा तो कस्टमर 110% वो खरीद ही लेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। Am I clear? Okay. अच्छा आप लोगों ने काफी बार घर में ये ट्रेंड देखा होगा कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो अपने मदर के साथ, राइट, तब तो कुछ नहीं होगा, तब तो मदर भी जाएंगे, आप भी जाओगे, सेम बिहेवियर से आप परचेजिंग कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने फादर के संग जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, फादर पहले से समझा के लेके आते हैं, कभी कभी किसी के घर में समझाते होंगे, कहीं पे भी जाओ अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा भी लग जाए तो प्लीज उसके बारे में देखकर कुछ एक्सप्रेशन मत देना, मतलब खराब से खराब एक्सप्रेशन ही रखना, और अगर अच्छा भी लगे तो मुझे अलग से बता देना कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, यही खरीदना है। क्योंकि उनको भी पता होती है, घर में जो जेंट्स होते हैं उन्हें पता होती है कि जहाँ एक्सप्रेशन चेंज हुए सामने वाला समझ जाएगा इस पे कितनी भी कोशिश कर लो पैसे मैं नहीं कम करूंगा। समझ में आ रही है? और वही चीज आप कहते रह जाते हो कि नहीं प्रोडक्ट तो बहुत खराब है, नहीं चाहिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा, तो उस पे आप अगर नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे तो बंदा मान भी जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में, क्योंकि मैंने आपको बताया आइडिया से लेकर के सर्विसेज देने तक के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। और उसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें आपको पता लगा सकते हो आपकी कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसके मन में चल रहा होगा उस समय पे। Am I clear? ओके यहाँ शायद आई थिंक शिवानी कुछ कहना चाहती हैं। पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी और अच्छा, कुछ okay. समझ में नहीं आता तो आप पढ़ा रहे थे। ओके आई थिंक अभी मानसी का माइक ऑफ है, अभी am I clearly audible? यस सर। ओके चलो फाइन। नेक्स्ट कम्स प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो अल्टीमेटली काफी बार क्या होता है, सॉरी कृपा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मानसी फराटा पंखा लगा के बैठी थी क्या? चलो लीव इट, कम टू द डिस्कशन ओनली। मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट।
प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात क्या है, मान लो आपने, जैसे काफी बार क्या होता है, रेस्टोरेंट्स में आप गए, आपने विजिट किया, पूरे रेस्टोरेंट में आपने सब कुछ जो भी आपका मन का था आपने ऑर्डर कर लिया, खा लिया, सब कुछ हो गया। जब आप निकल रहे थे एट द एंड, तो आपने देखा रेस्टोरेंट में शायद बोर्ड लगा हुआ है, टेल अस व्हाट यू कुड नॉट फाइंड इन अवर रेस्टोरेंट। हमें वो चीज बता दीजिए जो आपको हमारे रेस्टोरेंट में नहीं मिली लेकिन आप चाहते थे कि होती, राइट? अब देखो, किसी भी रेस्टोरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कैटेगरी का बंदा जो विजिट करेगा उसके लिए हर वो चीज हो जो वो खाना चाहता हो उस समय पे, राइट? क्योंकि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली तो एक रेस्टोरेंट पूरा मेन्यू बना सकता है। तो अगर मान लो पूरा का पूरा मेन्यू बना भी दिया, तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट किसी समय पे ऐसा होगा कि कस्टमर को मेन्यू में नहीं मिला लेकिन उसकी खाने की इच्छा थी। तो क्या करा, एक रेस्टोरेंट ने एक बोर्ड लगा रखा है जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप जब अभी आप निकल के जा रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा था जो खाने का मन था लेकिन आपको हमारे रेस्टोरेंट में नहीं मिला, इस बोर्ड पे लिख दीजिए प्लीज। क्लियर? तो बोर्ड पे लिख देने से आप मान लो, अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब आप निकल के जा रहे हो और अगर आप लिख के जा रहे होगे तो वो क्या कहते हैं, नीचे एक और चीज लिखी होती है, वी प्रॉमिस यू दैट वील बी डिलीवरिंग यू द सेम थिंग नेक्स्ट टाइम। मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको वो चीज हमारे रेस्टोरेंट में मिलेगी। तो ये चीज क्या रिफ्लेक्ट करती है कि रेस्टोरेंट जो है वो आपके नीड, वांट्स एंड डिमांड से कंसर्न्ड है और वो चाहता है कि मेरा जो कस्टमर मेरे यहाँ आ रहा है उसको हर वो चीज मिले जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे इस रेस्टोरेंट में मिलनी चाहिए। Am I clear? ओके अभी आप देखो, इसी तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे याद है कि जिस जगह मैं रहता हूँ बड़े बाजार में, खैर अब तो मैंने जगह चेंज कर ली, लेकिन जब मैं पहले बड़े बाजार में रहता था तो वहां पे एक स्टेशनरी की शॉप थी, होलसेल की स्टेशनरी की शॉप थी। रिटेलर्स आते थे, सामान लेकर के चले जाते थे। तो काफी बार क्या होते थे, रिटेलर्स आते थे उसकी शॉप पे और जो स्टेशनरी का होलसेलर था उससे बोलते थे भैया आपके यहाँ ये प्रोडक्ट है, तो कहते थे नहीं ये वाला नहीं है, हमारे यहाँ अभी आया नहीं है, ये हमने रखना शुरू नहीं किया है। लेकिन जब भी वो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट देके जाते थे जो कि उसकी शॉप पे नहीं होती थी, वो तुरंत अपने पास एक डायरी में लिख लेता था, राइट? तो अल्टीमेटली क्या होता था, ऐसे में 4 दिन के अंदर 400 अलग अलग रिटेलर आए और उन 400 रिटेलर ने 4000 अलग अलग तरीके की ऐसी चीजों का जिक्र किया, मान लो। तो 4000 चीजों की ऐसी लिस्ट तैयार हो गई। अब उन 4000 में से ऐसी कौन सी चीजें थी जिनका जिक्र बार बार हुआ, राइट? जिसकी डिमांड बहुत सारे रिटेलर ने क्रिएट करी। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बहुत पहले समय की बात करूंगा, जब आप लोग बहुत छोटे रहे होगे, एक सीरियल आता था शकल का बुम बुम, आता था। मैजिक पेंसिल बहुत पॉपुलर हुई थी उस समय पे। मैजिक पेंसिल पॉपुलर हुई थी तो मैं मेरी बैक नहीं आती। अच्छा, कृपया कह रहे हैं मैजिक पेंसिल होती तो बैक नहीं आती। बेटा मैजिक पेंसिल से सामान बनते थे, डिग्री नहीं बनती थी, ठीक है? चलो ओके। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मेमोरी रिकॉल हुई होगी आपको कि उस समय पे मैजिक पेंसिल जो एक ना छोटा सा कार्टून बना होता था पेंसिल के ऊपर, वो वाली पेंसिल बहुत पॉपुलर हुई। तो नए नए जो होलसेल में सामान बेच रहा है स्टेशनरी का, हो सकता है उसने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया सामान लाने पे कि ये पेंसिल कौन खरीदेगा आकर, किसकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन रिटेलर जब भी आता था वो कहता था भैया हमारे दिमाग खा लिया है बच्चों ने, जो आता है वो यही कहता है हमें मैजिक पेंसिल दे दो, राइट? एंड लिटरली आई वाज आल्सो सो यंग इन दोस डेज एंड व्हाट आई आल्सो डिड, मैंने भी खरीदी थी। मैंने घर पे लाके 5 दिन तक भगवान जी के पास रख दी कि कुछ होगा, ये चलनी चाहिए, राइट? ओके, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि क्या किया, आसपास जो भी जितने भी ऐसी रिटेल शॉप होती थी जिसपे स्टेशनरी का सामान मिलता था, बच्चे जाते थे और उस पर्टिकुलर पेंसिल की डिमांड क्रिएट करते थे। तो रिटेलर ने जाके बताया होलसेलर को, होलसेलर ने अपने पास डिमांड में लिख लिया और नेक्स्ट टाइम जाके उसने वही चीजों के बारे में मार्केट में पता किया और स्टॉक लाके अपने पास रख लिया और मार्केट में सर्कुलेट होने लग गई। तो आप देख रहे हो कि छोटी छोटी चीजों से कैसे डिमांड जनरेट होकर के होलसेलर तक पहुंच रही है और फिर वो उन चीजों का सामान लेकर के अपने पास रख रहे हैं। तो वो सेम कॉन्सेप्ट कंपनी अप्लाई करती है। कंपनी देखती है मार्केट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी डिमांड कस्टमर क्रिएट कर रहा है या उनके बारे में पूछ रहा है। मैं अगर वही प्रोडक्ट मार्केट में ले आऊंगा तो शायद लोग मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाएंगे। Am I clear? Yes, sir. थोड़े टाइम पहले जब लॉकडाउन लगा, जब आपने देखा कि मार्केट में जो सैनिटाइजर्स थे उनकी बहुत शॉर्टेज थी, राइट? अगर आप किसी भी जगह परचेज करने चले जा रहे थे तो आपको पता लग रहा होगा कि लोग मना कर दे रहे हैं कि नहीं सैनिटाइजर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये खत्म हो गया स्टॉक से। तो लोगों को समझ में आया ना। आप देखो आज की डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी लाइक विप्रो, जिसका पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, विप्रो मैक्स क्लीन करके अपना सैनिटाइजर ले आया मार्केट में। उसको क्या जरूरत है उस चीज की, राइट? घर के सफाई के लिए भी वो उस टाइप का पर्टिकुलर एक कोई क्लीनर लेकर के आए हैं। तो विप्रो इस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में क्यों आया? उसने देखा कि इसकी कहीं ना कहीं नीड है और इस टाइप के प्रोडक्ट को अगर मैं डेवलप करके मार्केट में बेचूंगा तो शायद मेरे को फायदा मिल सकता है। Am I clear? Okay. The next comes branding. अब आजकल आप देखो, मैंने उस दिन नाम लिया था फेसबुक का,
राइट कि फेसबुक को भी ब्रांडिंग की जरूरत है आज की डेट में। फेसबुक क्या कह रहा है कि चाहे मेरे कस्टमर बहुत हो, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, आपको लग रहा है कि फेसबुक को कहीं से कहीं तक ब्रांडिंग की जरूरत है? हर बंदा फेसबुक की जो ब्रांडिंग है ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहा है, इसलिए फेसबुक को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल या फेसबुक अपने प्रोडक्ट लाइक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप सबकी मार्केटिंग खुद कर रहा है। आजकल आप देखो ना वो नर्स वाला और आंटी वाला जो ऐड आ रहा है व्हाट्सएप का, कितना पॉपुलर हो रहा है वो। और इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि कम पैसा लगाया उन्होंने, टेलीविजन मार्केटिंग पे फेसबुक ने इस समय काफी पैसा लगाया हुआ है। फेसबुक अपने आप को प्रमोट कर रहा है विद अ टैगलाइन, दिल खोल के देखो दुनिया दुनिया खुल जाएगी। ये टैगलाइन को लेकर के प्रमोट कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो, आपको ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, फेसबुक की ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं? फेसबुक के ऐड क्यों ला रहे हैं? इंस्टाग्राम की क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्या रीजन है? फेसबुक के ऐड क्यों आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के क्यों नहीं आ रहे? सर इंस्टाग्राम सर जनरली यंगस्टर्स यूज करते हैं, और सर फेसबुक में सर हर एज का बंदा है। ओके, वेरी गुड, राइट। इंस्टाग्राम बेसिकली यंगस्टर्स यूज कर रहे हैं और फेसबुक पे हर एज ग्रुप का बंदा है। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे दिया ने। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फेसबुक का जो मैक्सिमम यूजर है वो स्विच होकर के बार बार इंस्टाग्राम पे जा रहा है और फेसबुक का एक्सेस कम होने लग गया है, इसलिए फेसबुक चाहती है कि मेरे यूजर फेसबुक पे भी बने रहे और इंस्टाग्राम पे भी बने रहे। इसलिए वो फेसबुक को इस समय सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा है। क्योंकि ये बात अलग है कि इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही अपना प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, है दोनों फेसबुक के ही। लेकिन फेसबुक क्या चाहता है कि मेरे यूजर व्हाट्सएप भी यूज करें, इंस्टाग्राम भी यूज करें और फेसबुक भी यूज करें। तीनों ऐप में से कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, राइट। मैं हर तरीके से उनके फोन में मौजूद रहना चाहिए। क्लियर? समझ में आती है इतनी चीज? ओके। तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आपको कि कोई भी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे क्यों ना चली जाए, वो चाहती है कि उसका जो नेम है वो उसके कस्टमर के दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए वो पर्टिकुलर ब्रांडिंग करते हैं। अब चाहे आप पार्ले जी की बात ले लो, राइट, अमूल बटर की बात ले लो, इनके पैकेट पे एक छोटा सा कार्टून बना हुआ है गर्ल कार्टून का, और वो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वो एज इट इज बने हुए हैं, राइट। काफी बार कहने में आ जाता है कि वो अमूल मक्खन वाली लड़की और वो पार्ले जी वाली लड़की दोनों कभी बड़े नहीं हुए, है ना? अरे पार्ले जी वाली तो सर मरने वाली है, शायद मर गई। ओहो, उसको भी कोरोना हो गया क्या? अरे बुढ़ी हो गई बहुत, 70-80 साल की हो गई। ओके, लीव इट कृपा। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कहीं ना कहीं आप देखो कि इस समय पे पार्ले जी कंपनी हो या अमूल कंपनी हो, इनको आपको लगता है कि इनको अभी भी एडवर्टाइजिंग की जरूरत है? कहीं से कहीं तक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो इस समय मैच्योरिटी लेवल पे चल रही है। मैच्योरिटी लेवल पे चलने का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं जो हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे, पीएलसी बोला जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। कहने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट पहले मार्केट में आता है, ग्रो करता है, फिर मैच्योर होता है और एक टाइम के बाद डिक्लाइन हो जाता है। क्लियर? समझ में आई? मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था आपको कि मैगी में क्या हुआ, एक टाइम के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि स्टिकी नूडल्स हैं, तो नॉन स्टिकी नूडल की डिमांड आने लग गई, राइट, और ये मार्केट में आ गया। लेकिन आप बात करो इन्हीं चीजों को दूसरे एग्जांपल से, एक बार समझाता हूं मैं आपको। पहले मार्केट में फ्लॉपी चल रही थी, राइट, छोटे से प्लास्टिक की फ्लॉपीज आती थी जिसमें डेटा स्टोर किया जाता था। अब वो फ्लॉपी से आज की डेट में लोग क्या यूज कर रहे हैं? पेन ड्राइव। तो फ्लॉपी एक टाइम पे ग्रो की थी, मैच्योर भी हुई थी, लोग खरीद भी रहे थे फ्लॉपी को, सीडीज को भी खरीद रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई जल्दी इनको नहीं खरीदता, यानी कि मार्केट से वो डिक्लाइन हो गई, वो मार्केट से बाहर चले गए वो प्रोडक्ट, राइट। तो ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मान लो अगर मेरा प्रोडक्ट मैच्योर भी हो गया है, लेकिन कस्टमर जब शॉप पे जाएगा तो जो प्रोडक्ट उसके दिमाग में होगा वो खरीदेगा वही। क्लियर है? ओके। तो एक टर्म यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, उसको लिख लीजिए अपने पास, हेडिंग में ऐड कर रहा हूं यहाँ पे ताकि आप लोग लिख पाओ उसको। हेडिंग का पार्ट नहीं है लेकिन आपको याद रहेगा, इसलिए लिख रहा हूं। इस टर्मिनोलॉजी को अपने पास नोट कर लीजिए, एवोक इफेक्ट, जो मैंने लिखा हुआ आगे स्लाइड में बढ़ाया मैंने, स्कोप ऑफ मार्केटिंग के आगे, वो लिख लीजिए अपने पास, एवोक इफेक्ट। फिर मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, फिर समझाऊंगा आपको एवोक इफेक्ट क्या होता है और क्यों ब्रांडिंग करना जरूरी है। हटा दो यहां से, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, फाइन। अच्छा, हाल फिलहाल में कोई स्टूडेंट मुझे एक बार ये बता दे कि कोई प्रोडक्ट उसका परचेज करने का प्लान बन रहा हो किसी भी प्रोडक्ट तो बहुत है,
ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप में से और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने का प्लान होगा हाल फिलहाल में, वो आप मुझे बता दीजिए। किसी भी मेजर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फैमिली के लिए मोबाइल तो परचेज है। करना हो। सर मेरा हेडफोन्स लेने का मन है। कौन से, वायरलेस? यस सर, वायरलेस जो आजकल वो आ रहे हैं मैग्नेट वाले, वो जो गले में लगते हैं सर, वो वाले। अच्छा, वो वाले लेने हैं। मुझे लगा आपको केवल एयर प्लग्स लेने हैं, कि केवल वो कान में लगे रहते हैं छोटे छोटे से, बस ना उनको ना, वो वायर तो की भी सर जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट्स होते हैं, वो तो नहीं चाहिए। वो इसलिए वो आपको इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपको पक्का पता है गिरा दोगे खो जाएंगे। हाँ सर, वो खो भी चुके हैं क्योंकि अच्छा, इसीलिए चलो नहीं fine, चाहिए। leave it. Let's talk about this कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई खरीदना है, राइट? मान लेते हैं घर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है कि कुछ भी खरीदना है, लाइक नंदनी ने बोला कि उसको अभी इस समय पे ईयरफोन्स चाहिए, किसी भी टाइप के चाहिए, लाइक नो मैटर व्हाट। बट क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में तो हम कंपनी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, राइट? हो सकता है ईयर प्लग अगर किसी को लेने हैं तो हो सकता है कोई स्टूडेंट बिल्कुल ब्रांड स्पेसिफिक हो, मुझे एप्पल के ही लेने ईयर प्लग्स, राइट? किसी को सैमसंग के ही लेने हैं। लेकिन मैं अभी दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के बात करूंगा। मान लेते हैं किसी के घर में या तो 4 व्हीलर आना है या 2 व्हीलर परचेज किया जाना है, राइट? अच्छा, मान लो मैं अगर आप लोगों को इस समय पे अपॉर्चुनिटी दूं या एक कॉन्सेप्ट पे बात करूं कि आप लोगों को अगर एक 2 व्हीलर परचेज करना है, तो आपके दिमाग में नाम होंगे कुछ कि इन 2 व्हीलर्स में से मुझे कोई एक परचेज करना है ना? कृपया अगर आपको 2 व्हीलर परचेज करना हो इस समय पे, कौन सा करोगे? रॉयल एनफील्ड से नीचे मुझे पता बात नहीं करोगे, उसके अलावा बताओ। नहीं सर, मैं करूंगा तो हार्ले या रॉयल। हार्ले, वेरी गुड, ओके। तो ये नाम है आपके दिमाग में, राइट? इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। स्मृति, अगर आपको परचेज करना हो 2 व्हीलर में से तो क्या परचेज करोगे? कौन सी कंपनी का परचेज करोगे 2 व्हीलर? So I prefer scooty only. बट स्कूटी ऑफ विच कंपनी? बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, किस कंपनी का परचेज करना है? सर ये Activa वेट नहीं उठा 5G. क्या कह रहे हो स्मृति? Sir, Activa 5G. एक्टिवा 5G, ओके, ठीक है। हीरो होंडा, मतलब होंडा से परचेज करनी है बेसिकली, राइट? ओके, ठीक है। अब किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं, कीर्ति आपको कुछ परचेज करना हो 2 व्हीलर? एक्टिवा ही ओनली, होंडा से ही परचेज करनी है, ओके। मतलब सब होंडा है, सबको पसंद आती है। एक्टिवा 5G परचेज करनी है सबको, ओके ओके। मान लेते हैं कि कोई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, राइट? उसमें अगर आपको परचेज करना हो, लाइक मान लेते हैं घर के लिए किसी को टेलीविजन लेना है, एक एलईडी लेकर के आनी है। एलईडी कौन सी कंपनी की लेके आएंगे? सैमसंग की लेके आनी है, ओके। सोनी की लेके आनी है, और वीडियोकॉन, एमआई, ओके। एमआई, एक बार घर से पूछ लेना, ऐसा ना हो आप लोग की डिमांड कुछ और हो, घर पे कुछ और हो, ठीक है? पता चले लड़ाई हो जाएगी, ओके। तो मैं अब आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैंने आपसे क्यों क्वेश्चन पूछा ये, और मैंने अभी एक टॉपिक का नाम लिखा था, इवोक इफेक्ट। इवोक इफेक्ट वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, एक वो पर्टिकुलर फ्रेम है हमारे माइंड में जो बन जाता है कुछ चीजों को लेकर के सिलेक्टिविटी के बेसिस पर, राइट? Sir, your voice is not audible to us. Okay, am I audible now properly? यस Yes, सर, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now talking in this term, evoke effect की मैं बात कर रहा हूँ। आपके माइंड में एक ऐसा फ्रेम डेवलप हो जाता है कुछ चीजों को लेकर के, जिसमें आप कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही रखते हो, राइट? जैसे मान लो आपको 2 व्हीलर में, आप जब टीवी पे बैठते हो देखने के लिए, उस टीवी को देखने के लिए, तो टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं 2 व्हीलर्स के, राइट? जुपिटर का भी देखने को मिल जाता है, यामाहा का भी देखने को मिल जाता है, बाइक्स के भी देखने को मिल जाते हैं, तमाम चीजें होती है। बट हर कंपनी का नाम जो होता है, क्या आपके माइंड में रहता है? सर ये बताओ जो बड़ी कंपनियां वो एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती हैं? यस, बड़ी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती हैं? सर कभी किसी का नहीं देखा। ओके, अल्टीमेटली देखो, अगर आपने हार्ले की बात करी है तो हाँ, नो डाउट, हार्ले ने कभी इतना ज्यादा 2 व्हीलर को लेकर के अपने एडवर्टाइजमेंट्स नहीं किए, क्योंकि दे आर अ ब्रांड हु फील देमसेल्व्स दैट दे आर सो मैच्योर, दे नेवर नीड एनी ब्रांडिंग, राइट? उनको ब्रांडिंग की जरूरत ही नहीं है। सर एक बार बंदा गया था ऑडी लेने के लिए, तो उसने पूछा था कि एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते हो, तो उसने ये कहा था कि अगर आप ऑडी लेने की औकात रखते हो तो आप टीवी देखोगे ही नहीं। वेरी गुड। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक अच्छा आंसर भी दिया उन लोगों ने, ओके। नहीं सर, एक्चुअली रहता ऐसे कैटेगरी के बंदे के लिए जो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे ही बिजी है, एंड ही डज नॉट हैव टाइम टू वॉच टेलीविजन इवन। सर एक्चुअली अपने
ये सर एक्चुअली रतन टाटा जी के आर्टिकल में उन्होंने ये बात खुद कही थी। तो दिस थिंग कि कभी भी कोई बिग ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट इसीलिए नहीं आते क्योंकि अगर वो एडवर्टाइजमेंट ही देखने का टाइम होगा तो वो परचेज नहीं कर सकता वो प्रोडक्ट। ओके, ये उन्होंने अपने आर्टिकल में कही थी जो मैंने पढ़ा था, सेम सर बात। बिल्कुल ठीक है। सर अल्टीमेट यस यू समबडी वांट्स टू आस्क समथिंग। सर अगर सर ऐसे होता तो सर इसका मतलब तो ये है कि फिर रिच क्लास देखती ही नहीं एडवर्टीजमेंट, और सर इसका मतलब सिर्फ मिडिल क्लास ही देखता है। दैट्स व्हाट, देखो अल्टीमेटली अब अभी ये यहाँ पे एक कोटेशन बोलूंगा उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोटेशन ये है दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, टू साइड्स, राइट, हेड एंड टेल। तो एवरी कैटेगरी और एवरी लेवल ऑफ द सोसाइटी हैव टू साइड्स, राइट, हेड एंड टेल। यहाँ कैसे है, जैसे आप मान के चलो अगर रिच क्लास की बात करी, दिया ने कहा कि जैसे रिच क्लास, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ऐड दिखते ही नहीं है, टीवी नहीं दिखते, राइट। तो यस मैं आपको बता दूं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, एक कहने के लिए, आंसर देने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, दैट यू माइट बी सो बिजी दैट यू मे नॉट बी हैविंग टाइम टू वॉच टेलीविजन, इसलिए ऐड नहीं आ रहे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो आज की डेट में अगर आप टॉप 10 कंपनीज को भी निकाल लोगे, अलग अलग इंडस्ट्री की, अलग अलग कैटेगरी की, तो कंपनीज केवल अपने आप को माइंड में कस्टमर के रखवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका बंदा टीवी देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, उनके लिए केवल लिमिटेड लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको तो बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जिनको कैप्चर करना है, तो उसके लिए भी तो ऐड लेके आना है ना, राइट। अच्छा, लोग कहते हैं कि एप्पल जैसी कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, आप देखो टीवी पे उनके कभी कभी ऐड आते हैं, राइट। इनफैक्ट अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाओगे तो कितने बड़े बड़े उनके फ्लेक्स लगे होते हैं जो आपको एयरपोर्ट पे नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक जो छोटी सी चीज आपको बता रहा था कि जब प्रोडक्ट हमारा मिच्योर हो गया, तो प्रोडक्ट मिच्योर होने के बाद उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मिच्योर होने के बाद बस हमें इसलिए करनी है एडवर्टाइजिंग ताकि बंदे के मन में नाम रहे। और टू व्हीलर अगर आप परचेस करने जा रहे हो, आप लोग अगर 3-4 कंपनीज के नाम ले रहे हो तो केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो 3-4 लोग आपके जो कंपनी के नाम है वो आपके माइंड में उस फ्रेम में एंटर कर चुके हैं कि आप सिलेक्टिव हो गए हो चीज को लेकर के। आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो गई है कि टू व्हीलर अगर परचेज करना है तो होंडा का ही करना है, होंडा में करना है, यानी कि एक्टिवा 5G ही करनी है, 6G ही करनी है। Am I clear? राइट। और अपने पर्टिकुलर देखो कैटेगरी के हिसाब से हर बंदा हर तरीके की चीज सोचता है, तो कृपया अगर सोच रहा है कि हाँ उसको हार्ले परचेज करना है तो हो सकता है उसके फ्रेम में वो पर्टिकुलर कंपनी का नाम एंटर हो गया। और ये हुआ कैसे, ये हुआ ब्रांडिंग के बेसिस पर, राइट। कंपनी ने ब्रांडिंग ऐसी कर दी कि बंदे ने अपना माइंडसेट बना लिया कि मैं एक दिन अपने लाइफ में अगर परचेज करना चाहता हूँ तो यही परचेज करूंगा, राइट। आई सीरियसली कुड नॉट बिलीव कि परसों मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, आई थिंक परसों नहीं कल की बात है, जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था एंड आई सॉ बेंटली इन बरेली। आई मीन इट वाज सरप्राइजिंग। ऑडी तक तो ठीक था, ऑडी भी मैंने देखा था, मर्सिडीज भी मैंने देख लिया बरेली में, कोई बड़ी बात नहीं है, जगुआर भी लोगों के पास है बरेली में, राइट। लेकिन दिस वाज वेरी शॉकिंग कि आई मीन द पर्सन वाज गोइंग विद बेंटली, और दैट टू ये पीलीभीत वाली रोड पे, इतने गड्ढों में बेंटली लेके कौन जाता भाई। लेकिन बेंटली जैसी कार तक भी एंटर कर चुकी है बरेली के अंदर, दिस इज अ बिग थिंग। लाइक बेंटली इज काउंटेड एज वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस कार, राइट। सही और बात है वो सर। मैंने देखा कल, और केवल क्या है, 2 सीटर, the person हाँ, who was driving and next to it, बस that's it। तो सर उस रोड पे तो चलेगी भी नहीं, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। अब अल्टीमेटली आई डोंट नो बंदे ने क्यों रिस्क लिया इस पर्टिकुलर कैटेगरी की कार को यहाँ पे ला करके, बट यस इट इज सरप्राइजिंग ओनली कि बरेली में लोग लेकर के आ रहे हैं। Am I audible to you people? यस यस सर। Okay, fine. Next comes पैकेजिंग। आप देखो मार्केटिंग का कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो पैकेजिंग को लेकर के भी है। मैं ज्यादा बड़े एग्जाम्पल Excuse नहीं me, दूंगा, sir. आपको थोड़े टाइम पहले की याद दिलाऊंगा। यस यस आई थिंक somebody wants सर to say मार्केटिंग कस्टमर्स के थ्रू भी तो हो जाती है। सर मार्केटिंग बड़ी कंपनीज की कस्टमर्स के थ्रू भी हो सकती है। अरे सर चले गए, अभी मत बोलो। जब एक पर्टिकुलर सर कस्टमर अरे परचेज सर करता है एक प्रोडक्ट। अरे अरे चुप हो तो जा। बचा के रखो अभी, रुको रुको। प्रियांशी सर इज नॉट देयर। सर आ गए हैं। सर भाभी ने बुला लिया था क्या? yes, am I audible to you people? यस सर। यस सर। I think there was some problem with the network, so I got out of the meeting. क्यों सर, नेटवर्क का क्यों इल्जाम लगा रहे हो? Right. Okay, just give me a moment. Let me share the screen. Okay, now visible?
Excuse me, sir. सर क्या हुआ, बड़ी शांति हो गई? सर नेट तो नहीं खत्म हो गया आपका? So am I audible to you people? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Thank you for being in the class for so long. I got out of the meeting again due to network. Okay. Without wasting time, what I'll say is that we'll be discussing the remaining portion of the scope of marketing management in the next class. And for now, I'll take the screenshot of the meeting so that I can mark your attendance also. Okay. सर मेरी जरूर लगा देना, आ जाए. Sorry. भूल मत जाना सर. For attendance. हाँ जी. No problem. आपकी attendance में मैं पक्का आपका नाम हटा के भेज दूँगा. ठीक सर. ठीक है. थैंक यू. Okay, no problem. अरे ये फिर भाग गए सर, क्या चक्कर है? ज्यादा तंग कर रहे हैं भाभी इनको आज. मानसी, सर की नेक्स्ट क्लास है ना अभी एचओडी सर की? हाँ 6:30 पे. 6:30 4 से कैसे? एचओडी सर का तो अभी शक्ल देखने का मन नहीं है. सही है. यार 1.5 GB तो ऐसे ही खत्म हो जाता है. अब मेरा तो पूरा नेट खत्म हो गया. एचओडी सर पे तो एक एमबी भी ना लगाऊंगा तो.
एकम आएगा ना एचओडी सर की क्लास में? हाँ एकम जरूर आएगा। अरे यार ये हाँ होता है थोड़ी सी कॉमेडी तो करेगा वरना हम तो बोर हो जाएंगे। हाँ ये पढ़ाएगा आज, कैश फ्लो स्टेटमेंट यही पढ़ाएगा। है एकम तू पढ़ाएगा? अरे मैं टॉपर हूँ फिर इस बार। एलिमेंट्स बताइए। इस बार तो टॉप करनी थी फिर, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुए, क्या करें हमारी गलती। कोई नहीं, थर्ड सेमेस्टर में करियो टॉप तू, ठीक है? अरे तब मूड नहीं होगा ना, इस बार मूड था। हाँ, तो फोर्थ सेमेस्टर में मूड बना लियो, सेमेस्टर तो भी 4 बचे हैं। मानसी क्या करें, चले जाए क्या? बढ़िया। नेक्स्ट क्लास क्या है? यार इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए, ले ली पहले, वो तो पता चल जाए, पता चले अटेंडेंस नहीं लगेगी। सर है भी, सर दिख तो नहीं रहे हैं। नहीं है सर बहन। नहीं है इस समय, नहीं है। सर की अभी क्लास चल रही है। एकम तू अबे चुप रह। एकम हेड ऑफिस में होंगे सर अभी। हाँ ये बहुत बोल रहा है, पिटेगा ये। वो समझ रहा है घर पे है सर, घर नहीं पे घर नहीं पे है, है, हेड ऑफिस में है। हेड तभी ऑफिस में। क्लास चल रही होगी हेड ऑफिस में उनकी। पायल, पायल पायल से पंजाबी में हड़काना तुम्हारा घर। मैंने पायल कुछ नहीं पंजाबी में कर सुना। दिया पागल। पायल अरे पायल सुना सुना। बर्फी खा रही है। पायल से कुछ नहीं पंजाबी में कर दिया हड़काना ना, तेरा मुंह तोड़ देना मैं, तेरा बर्फी बर्फी दे नाम ले आता। पायल इस टाइम रसगुल्ले गुलाब जामुन आगे लेके ओए आ रही स्क्रीनशॉट लेके सर को सेंड कर दे रहे हैं। हाँ यही कर। हाँ ये बेस्ट आइडिया, ये कर लो मानसी, हाँ सेंड कर फिर दो पता नहीं ले कब लो। कनेक्ट हाँ होगा। मैं कर रही हूँ, कर लो, 90 60 का बच्चा है। मैं कर। पायल, है। मेरा स्क्रीनशॉट 2 बार ले लियो। पायल से हड़काना हाँ दिया। पंजाबी में सुना है इसे। पहले इसको यार इसे पंजाबी में जितना सुना आएगा दे। ना ये उतना चढ़ता है। हाँ इसे अच्छा इसको सुना। तो बोल रहा है फर्स्ट स्क्रीनशॉट। ले लिया? हाँ हो गया स्क्रीनशॉट।